They say some people are just born with a brain for science. I'm here to tell you that that's a myth. Science lovers are made, not born. Welcome to Synthesized. I am the Pratibha, and today we are tackling one of the most important chapters of your class 10 CBSE board: light, reflection, and refraction. Most students just struggle with this chapter because they try to memorize the ray diagrams. But in this laboratory of learning, we don't memorize, we synthesize. We are going to break down the logic of how light behaves so that whether it's a concave mirror or a convex mirror or a glass slab, you won't just draw the answer, you'll understand the physics behind it. So today we look at the reflection of light, the science of bouncing back. This is for class 10 physics. Updated, this presentation is updated for CBSE 2026 pattern. In this pattern, this is basically focused on logic or rote learning. For the 2026 board exams, CBSE has shifted focus towards competency-based questions. And what it means that fewer direct definitions and more what happens if, and assertion reason, case studies, such type of scenarios. Physics weightage overall for the science paper is 25 marks out of total, and the reflection and refraction of light is a very important chapter. It usually accounts for 10 marks, right? This also includes refraction. So think of a tennis ball. If you throw it at the wall, it will bounce back. Light will do exactly the same thing, right? जैसे आप एक बॉल को दीवार पे मारते हैं और वो टप्पा खाकर वापस आ जाती है, लाइट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है. जब लाइट एक पॉलिश सरफेस पे या मिरर या शीशा से टकरा कर वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it hits, say, a polished surface like a mirror, it is called as reflection. We don't see the objects, we see the light that bounces off them and enters our eyes. इसका सीधा मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते हैं, हम उस लाइट को देखते हैं जो उन ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों में एंटर करती है. अगर किसी कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो तो वहां ऑब्जेक्ट्स तो होते हैं पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक नहीं पहुंचती, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता. अंडरस्टूड? सो द की प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. उसे लाइट की जिद भी बोल सकते हैं, राइट? इमेज में लाइट को स्टबन जिद्दी दिखाया है. क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये मुड़कर रास्ता बदलकर नहीं चलती. इसी प्रॉपर्टी में साइंस को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं. यूनिवर्स की सबसे तेज चीज लाइट की दुनिया की स्पीड दुनिया में सबसे फास्ट है. इसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और इसका मतलब है इट इज द फास्टेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स. ये 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर कवर कर सकती है. जैसे हमारे जीवन में भी कुछ नियम्स होते हैं, वैसे लाइट रेस के भी कुछ नियम होते, दैट इज कुछ लॉज होते हैं, right? But before understanding these laws, let us understand the few terms, right? This is called as incident ray. ये वो लाइट रे है जो किसी सोर्स जैसे सूरज के बल्ब से निकलकर किसी इंटरफेस या सरफेस पर गिरती है. इधर सरफेस क्या है?
प्लेन मिरर, राइट। यही वो रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, जो आगे चलकर रिफ्लेक्ट करेगी अगर मीडियम सेम है, या रिफ्लेक्ट करेगी अगर मीडियम दूसरा है, राइट। सो दिस इज द इंसिडेंट रे. So an incident ray is the ray that strikes the interface separating the two medias after emitting from the source of light. The incident ray, this is the incident ray, it is reflected or refracted to form an image. अभी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो जो रे जो वापस बाउंस बैक होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा वही पुराना रास्ता नहीं फॉलो करेगी जिससे इंसिडेंट रे आई थी. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. It is the ray that is thrown back from the interface on which the incident ray strikes. The ray of light that bounces back from the interface is known as the reflected ray. The reflected ray does not follow the same path as that of the incident ray. इसका path different है, path ये same नहीं follow करती. Now what is normal? Let us understand normal. नॉर्मल इधर देखिए, इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप, इधर देखिए. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री एंगल. ये देखिए, ये सरफेस है, प्लेन मिरर एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री एंगल पर ये एक नॉर्मल है. ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर लाइट टकराती है वहाँ पर बनाई जाती है. So a normal is defined as a line that is perpendicular to the surface. Therefore, we can say that the ray incident at right angle to the interface separating the two media is known as normal. Right? अभी understand करते हैं angle of incidence. This is the angle of incidence. The angle of incidence क्या होता है? Incident ray और normal के बीच, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर है और ये नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आगे जाके इसी पे बड़े बड़े कंसेप्ट बनेंगे. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ये मत लिख देना, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच के बनने वाला एंगल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला एंगल, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. दिस इज द एंगल बिटवीन द रे दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर लाइट गिरी है. अंडरस्टूड? सो वी हैव लर्नड अबाउट नॉर्मल, we have understood incident ray, we have understood incident angle, understood reflected angle, reflected ray and the point of incidence. So laws of reflection. Reflection के दो मेन नियम होते हैं. The first law of reflection, that is पहला नियम. What is पहला नियम? The first law of reflection states that the incident ray, the reflected ray and a normal to the surface of the mirror, they all lie in the same plane. इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही फ्लैट सरफेस या प्लेन पे होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि लाइट एक प्लेन से आए और दूसरे प्लेन में चली जाए.
Now let's look at the second law of reflection. The second law of reflection states that the angle of reflection is equal to the angle of incidence. That is angle I. Angle I is equal to angle R. Understood? So both angles are measured with respect to the normal of the mirror. ये नियम कहता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. अंडरस्टूड? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इट स्टेट्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दोनों एंगल्स को हमेशा नॉर्मल लाइन से ही नापा जाता है या मेजर किया जाता है. ऐसा नहीं कि आप एंगल आई इधर ले लें. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर्ड with respect to the normal, not to the plane surface. Angle I is always equal to angle R. That is the second law of reflection. States that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Both angles are measured with respect to the normal of the mirror. These are the two main important laws of reflection.